Hello guys. So up till now we have seen some historical background in the context of Maharashtra. Okay. So we have seen how Rashtrakutas, how Vakatakas, okay, and how Yadavas ruled Maharashtra or what changes they have made to the profile of Maharashtra. Okay. From this particular session, we'll move towards the next part that is about the Nizam because the actual journey starts from this particular thing, Nizam. Okay. So we are going to see about the Nizam's rule in Maharashtra. First section जिससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज दैट वुड बी द निजाम्स रूल इन महाराष्ट्र. ओके, जस्ट अ मिनट. So today we'll be starting with the part of Nizam's rule in Maharashtra. So how did Nizam come to power, or how did Nizam assume the throne? Okay, we are going to see the story about it. Okay, सबसे पहले क्या हुआ था? You might be knowing that uh, we have seen Yadava dynasty and all. Okay, then we have Maratha dynasty, but that is not that much important as of our examinations. Okay, so what happened was there was a time when Mughals were मुगल्स वेर इन पार और मुगल्स वेर इन ग्रेट वॉयज महाराष्ट्र में या फिर बोल सकते हैं पूरे इंडिया में इनका दबदबा बहुत ज्यादा था या फिर दे हैड अ ग्रेट होल्ड ऑन होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग महाराष्ट्र. ओके, सो दैट्स व्हाई यू कैन से इन होल ऑफ द 17th century. Okay, from mid 17th century I can say, to be specific, the whole of the Maharashtra was under Mughals. Okay, and the credit for bringing Maharashtra under Mughal goes to an autocratic ruler, that is Aurangzeb. Okay, the credit for bringing the whole of Marathwada under the Mughal goes to Aurangzeb. Okay, it was Aurangzeb who had captured Maharashtra. But see, it was impossible for Aurangzeb to capture it till 1680. It was literally impossible for him. In fact, you can say that Maharashtra was made impermeable. Impermeable for Mughals. Okay, who had made this particular thing? किसके वजह से महाराष्ट्र जो था ये मुगल्स के लिए impermeable था? Comment in the comment box. Okay, most of you might be knowing the answer. Okay, I just give a hint that person was born nearly in 1630. Okay, and finally you can say in 1686, near to mid of 1686, Maharashtra came under Mughals. महाराष्ट्र ऐसे कुछ था नहीं उस टाइम पे, but then too Maharashtra came under Mughals. So you guys need to tell me during the span of 1630 to 1680 who had made Maharashtra literally impermeable. Okay, not exactly from 1630, I'm just telling the date when this person was born. Okay, he has made Maharashtra literally impermeable for the Mughals. Okay, so what happened now? The dynamics changed. What happened is on 20th Feb 1707, a landmark event. Okay, 20th Feb 1707. अब इसी डेट को क्या माना जाता है? इसी डेट को माना जाता है कि हमारी जो मेडिवल हिस्ट्री है वो खत्म होती है. Okay, on this particular date, you can say roughly the medieval history ends. Medieval history इस डेट पे खत्म होती है. Okay, medieval history ends over here. क्यों? क्या ऐसे लैंडमार्क इवेंट होता है यहाँ पे जो कि हमारी मेडिवल हिस्ट्री खत्म होती है? दिस डेट इज मार्क फॉर डेथ ऑफ औरंगजेब. ओके, औरंगजेब का डेथ होता है कहाँ पे? यू कैन सी इन नगर, अहमदनगर. Okay, by the way, recently there is one more thing going on about changing the name of Ahmednagar. What is the new proposed name? This might be important for your upcoming examination. Yes, this is, I'm talking about 2024. Okay, this might be important for this particular year. What is supposed to be the new name of Ahmednagar? Proposed new name of Ahmednagar. Okay, it's up to you to answer this particular question. Okay, so what happened after the death of Aurangzeb? Okay, the struggle which Marathas were undergoing for their supremacy or for their relevance ended. Marathas लोग क्या कर रहे थे? See, after Shivaji, छत्रपति शिवाजी महाराज, देवा छत्रपति संभाजी महाराज.
ओके, वन संभाजी वाज टेकन प्रिजनर, जब इनको कैदी बना लिया गया था, ओके, देन हु टुक द चार्ज ऑफ सर्वाइवल फॉर मराठा एम्पायर वाज राजाराम महाराज. He was doing continuous struggle till 1700s. Okay, then you can say Tarabai. She has taken the charge, and she was what you can say running the things, or she was responsible for carrying forward the reign of Marathas. Okay, but what happened on 20th February 1707? This struggle of Marathas for their survival ended. Okay, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो स्ट्रगल था मराठास का खुद की रिलेवेंस के लिए, वो खत्म होता है. ओके, और अब जैसे कि औरंगजेब वाज सपोज्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, कि जैसे औरंगजेब का डेथ होता है, okay, मुगल एम्पायर जो थी, जो उसका पूरा पावर था, सब कुछ खत्म होने पर, ओके, व्हाट हैपेंस इज मुगल एम्पायर के अंदर ही वो जो अलग अलग छोटे छोटे प्रोविंसेस थे, ये लोग क्या करते हैं, ये खुद के इंडिपेंडेंट एम्पायर बनाना चालू करते हैं. कुछ इंडिपेंडेंट बनाते हैं और कुछ सब्सिडरी एम्पायर बनाते हैं. व्हाट डू मीन बाय इंडिपेंडेंट सब्सिडरी? इंडिपेंडेंट मतलब क्या, ये बोलेंगे कि हम कौन मुगल्स, हम नहीं जानते मुगल्स. ओके, जस्ट एन एग्जांपल, ऐसे नहीं बोलेंगे वो. इंडिपेंडेंट मतलब क्या, दे वुड से दैट दे विल नॉट एक्सेप्ट ओवरलॉर्डशिप ऑफ मुगल्स. ये लोग क्या बोलेंगे, मुगल्स आर नॉट आवर ओवरलॉर्ड्स. और सब्सिडरी जो होंगे वो क्या बोलेंगे, यस, मुगल्स आर आवर ओवरलॉर्ड, दे आर इंडिपेंडेंट बट मुगल्स आर सपोज टू बी आवर ओवरलॉर्ड. ओके, इसके बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छे से देखते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, इधर ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. ओके, देन सेकंड थिंग, अब क्या हो रहा है, सब लोग अपने अपने किंगडम्स बना रहे हैं, अलग अलग चीजों की जगह पे चल रहे हैं. ओके, तो अब इस टाइम पे एक सेल्फिश सॉर्ट ऑफ गवर्नर था, किसका, यू कैन से फारूक सियर का. ओके, द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन वाज मीर कमरुद्दीन निजाम उल मुल्क. ओके, ये सेल्फिश तो था ही, बट यू कैन से ही वाज द मोस्ट एबलेस्ट सरदार ऑफ मुगल्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम. बहुत ही एबल आदमी था ये. ओके, यू कैन से ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरफेयर एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम. लड़ाई में भी ये बहुत ही अच्छा वाला बंदा था, एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे से कर पाता था ये, बहुत क्लेवर था, बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक था. ओके, तो एज जितने मुगल्स के सरदार थे उस टाइम पे, उनके कंपेटेबिलिटी में ये वाला बंदा जो था, मीर कमरुद्दीन निजाम उल मुल्क, ही वाज सपोज्ड टू बी द मोस्ट एबलेस्ट, क्लेवर, विटेस्ट पर्सन. ओके, अभी होता क्या है देखो, 1713 के दरमियान, नियर टू 1713, ओके, एक पेशवा का इंपॉर्टेंस बढ़ता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ अ पर्सन कॉल्ड एज बालाजी विश्वनाथ. ओके, इस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से क्या होता है, पेशवा का डोमिनेंस बढ़ता जाता है. ओके, और दिल्ली में इस टाइम पे किंग मेकर का रोल प्ले कर रहे थे दो बंदे, जिनका नाम है सैयद ब्रदर्स. You guys will get to know about this particular Sayyid brothers from the modern Indian history. Okay, these two people were called as kingmakers. Okay, इनको kingmakers बोला जाता था. Now you guys to comment the names of these two brothers. क्या नाम थे? Okay, what were the name of these two particular Sayyid brothers? Okay, दो ही थे या तीन थे, ये भी बता दो. चलो कोई नहीं, दो ही थे. There were two Sayyid brothers. Okay, you guys need to comment their names. Okay, इन दोनों के नाम क्या थे, आप लोगों को कमेंट करना है. आई वाश यू थ्री क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर फर्स्ट स्लाइड इटसेल्फ. ओके, तो तीनों क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों को देने हैं. तो बालाजी विश्वनाथ, व्हाट ही हैज डन, ओके, जो दिल्ली में सैयद ब्रदर्स थे, इनके साथ वो ट्रीटी करता है. ओके, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज एंगेजिंग इन अ ट्रीटी, और बोलता है कि हमको अगर नॉर्थ में हेल्प पड़ेगी तो आप हमें देना, आपको अगर साउथ में या फिर मिडिल में हेल्प पड़ेगी तो हम आपको देंगे. तो एक छोटी सी फ्रेंडशिप ट्रीटी में एंटर करता है बालाजी विश्वनाथ, किसके साथ, सैयद ब्रदर्स के साथ. और इसी टाइम पे जो दिल्ली एम्पायर है, जो मुगल्स है दिल्ली के, वो क्या करते हैं, वो निजाम को, दे सेंड निजाम टुवर्ड्स साउथ. ओके, क्या कर रहे हैं, वो निजाम को साउथ में भेज रहे हैं. ओके, तो अब निजाम क्या करेगा, जैसे वो साउथ में आएगा, आई टोल्ड यू ही इज द विटेस्ट पर्सन, इज द मोस्ट क्लेवर पर्सन, एबलेस्ट पर्सन, डिप्लोमेटिक पर्सन है वो. तो वो क्या करेगा, वो मराठों के नाक में दम करेगा. व्हाट ही वुड डू, ही वुड बी अ पिंप. ओके, और से बोल सकते हो
कि वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे हर किसी के काम में दरार डालेगा, या फिर मराठास का जो फंक्शनिंग अच्छे से हो रहा है उसको वो नहीं होना चाहिए, इसलिए वो अपना सब कुछ लगाएगा। ओके, इनफैक्ट वो क्या करेगा, मराठा के मराठाओं में ही झगड़े लगाने चालू कर देगा। ओके, तो व्हाट ही विल डू, कुछ मराठा के सरदार थे जैसे कि सारजे राव घाटे घाटगे सारजे राव घाटगे, उसके बाद थे राम बाजी निम्बालकर। ओके, और एक था चंद्रसेन जाधव। ओके, ये कुछ एबलिश मराठा सरदार थे या फिर मराठा नोबल्स थे। ये क्या करता है, इन लोगों को भड़काता है। ओके, ये क्या करेगा, इन लोगों को भड़काएगा किसके खिलाफ, शाहू के, और ये कैसे, छत्रपति शाहू के खिलाफ। क्या करेगा ये, छत्रपति शाहू के खिलाफ इन लोगों को भड़काएगा। ओके, और बाद में यही लोग क्या करेंगे, दे वुड चैलेंज अथॉरिटी ऑफ छत्रपति शाहू। ओके, ऐसे ही तीन नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, ये कुछ तीन बड़े एग्जांपल्स है कि इन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि इन्होंने क्या किया था इसमें, जस्ट वी आर गोइंग टू सी द स्टोरी। समझ समझ के रहने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या था। ओके, तो व्हाट दिस पीपल वुड डू, इन लोगों को प्रोवोक कर रहा है कौन, निजाम। और इस प्रोवोकेशन की वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, छत्रपति शाहू को चैलेंज कर रहे हैं, उसके अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। बट अगेन हु विंस ओवर दिस, छत्रपति शाहू के पास है बालाजी विश्वनाथ। ओके, एंड ही वुड डील विद ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, इन सब चीजों से वो डील कर लेगा, और ऑलवेज ही विल कीप छत्रपति शाहू एट द टॉप। ओके, उन्हीं को वो ऊपर रखने की कोशिश हमेशा करता है। ओके, तो अभी क्या हो रहा था जब ये सब चीजें चल रही थी। ओके, तो बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया, उसने अपने दोस्त सैयद ब्रदर्स को बताया कि देखो भाई, निजाम नाक में दम कर रहा है। ओके, निजाम हमें बहुत परेशान कर रहा है, तो एक काम करो, इसको यहाँ से निकालो और कहीं और डाल दो। ओके, हमें सर दर्द नहीं चाहिए। तो सैयद ब्रदर्स क्या करते हैं उस टाइम पे, सैयद ब्रदर्स का जो पपेट है, पपेट किंग जिसको बनाया, किंग मेकर्स बोलते हैं इनको। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, अपने किंग मेकर, अपने किंग को जिसका नाम था फारूक सियार। ठीक है? इन्होंने एक मुगल प्रिंस को किंग बनाया था, इसका नाम था फारूक सियार। ओके, इनको बोलते हैं कि एक काम करो यार, निजाम हमारे अलाइज को तकलीफ दे रहा है, तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, निजाम का ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो व्हाट दे डिड, उन्होंने बोला कि निजाम यार तू बहुत शार्प है, यू आर द मोस्ट क्लेवरेस्ट, तेरा काम वहां पे नहीं है, तो एक काम कर, तू दिल्ली में। ओके, दे कॉल्ड हिम इन दिल्ली, और दिल्ली में बुलाने के बाद भी क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको अवध भेज रहे हैं, उसको अलग अलग जगह पे भेज रहे हैं। ओके, तो वो उन्होंने क्या किया, एक पासा फेंका। ओके, उन्होंने एक पासा फेंका, और क्या किया कि निजाम को हैदराबाद या फिर डेक्कन, साउथ इंडिया जहाँ पे उसको भेजा गया था, वहां से वापस बुलाते। ओके, निजाम इज कॉल्ड बैक ड्यू टू दिस पर्टिकुलर बालाजी विश्वनाथ, व्हाट दे आर डूइंग, निजाम इज कॉल्ड बैक। ओके, निजाम इज कॉल्ड बैक टू दिल्ली। ओके, उसको बुलाया गया, और उसकी जगह पे, ओके, उसकी जगह पे क्या करते हैं, ये सैयद हुसैन को रखते हैं। सैयद हुसैन को निजाम की जगह पे भेज रहे हो। ओके, नाम दिस सैयद हुसैन इज रिप्लेसिंग निजाम होते। ओके, अभी जब सैयद हुसैन ये क्या कर रहा है, चार्ज ले रहा है। ओके, तो व्हाट ही विल डू, ही वुड साइन ऑन बिहाफ ऑफ सैयद ब्रदर्स, ही वुड साइन अ ट्रीटी विद शाहू। ओके, क्या कर रहा है देखो, एन इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। ओके, ही इज गोइंग टू साइन अ ट्रीटी विद शाहू, कब करेगा ये साइन, 1718, नियर टू 1718 में। ओके, ये जो सैयद हुसैन है, ऑन बिहाफ ऑफ सैयद ब्रदर्स, व्हाट इज गोइंग टू डू, ही इज गोइंग टू साइन अ ट्रीटी विद शाहू इन 1718। ओके, अब इस ट्रीटी के थ्रू क्या होगा, ओके, नाम वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट द थिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस, इस ट्रीटी से हो क्या रहा है, मराठास को दो राइट्स मिल रहे हैं, विच आर दोस, चौथ एंड सरदेश। ओके, मराठास को दो राइट्स मिल रहे हैं, विच आर दोस टू राइट्स, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज चौथ, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज सर देशमुखी। ये दो राइट्स मिल रहे हैं कहाँ पे, छह प्रोविंसेस। ओके, इन सिक्स प्रोविंसेस मराठास आर गेनिंग द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू
of Chauth and Sar Deshmukhi from 6 provinces. And which are those 6 provinces? The first one is Khandesh, Warhad, Aurangabad, Bijapur, Bidar, and हैदराबाद. देखो डिप्लोमेटिकली क्या क्या नहीं किया जा सकता. ओके, तो दिस थिंग्स वेर, मतलब ये सब चीजें चल रही थी वहां पे. ओके, बट होता क्या है जब ये सब चीजें चल रही है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल, बट निजाम जिसका बार बार ट्रांसफर हो रहा है उसको ये सब अच्छा नहीं लगता. ओके, पहले उसको मुरादाबाद बुलाया गया, वहां से दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली से फिर उसको अवध में ट्रांसफर कर दिया गया. तो निजाम को ये सब मंजूर नहीं था. ओके, तो निजाम क्या करता है, निजाम बगावत कर देता है, ही रिबेल्स. ओके, वो रिबेल करेगा और वो क्या करेगा, वो सीधा आएगा अपने सेट की हुई किंगडम पे. कहाँ पे? डेक्कन. और टू बी स्पेसिफिक यू कैन से हैदराबाद. यहीं से तो उसने नेम फेम गेम गेम सब कुछ एस्टेब्लिश किया था, यहीं से सब कुछ उसने किया था. तो वापस यहाँ पे आता है. बट इस टाइम पे यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कोई और बैठा है. सैयद ब्रदर्स का एक बंदा बैठा है, उसका नाम है सैयद हुसैन. ओके, अब सैयद हुसैन भी क्या करता है, ये अपना एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे रखता है और वो दिल्ली चला जाता है. ओके, ना कौन होगा इसका रिप्रेजेंटेटिव, उसका नाम होगा मुरबिस खान. ये इसका रिप्रेजेंटेटिव है. ओके, बट निजाम क्या कर रहा है, ये रिबेल कर रहा है, उसको ये बार बार का ट्रांसफर अच्छा नहीं लगता, बिकॉज ही इज एन केपेबल पर्सन. और उसको दिख रहा है कि नवाब क्या है, जो भी दिल्ली का या फिर मुगल सुल्तान है, ही इज यूजलेस. ये इसको समझ में आ रहा है. तो ये क्या करता है, ये रिबेल करता है. ओके, और सीधा जाता है हैदराबाद. हैदराबाद जाके क्या करता है, इस मुरबिस खान को चैलेंज करता है. ओके, और इन दोनों के बीच में एक बैटल होती है. ओके, एक बैटल होती है. बैटल ऑफ साकरखेड़ा. ओके, इन दोनों के बीच में बैटल होती है, दैट इज बैटल ऑफ साकरखेड़ा. इसमें वो क्या करता है, सी आई टोल्ड निजाम इज वेरी केपेबल पर्सन. तो वो क्या करेगा, इस मुबरेज खान को वो हरा देगा. ही डिफिट्स मुबरेज खान. निजाम क्या कर रहा है, मुबरेज खान को बहुत ही आसानी से हरा देगा. ओके, एक अब की बात चल रही है, इट इज 1724, 1 October 1724 टू बी स्पेसिफिक. ओके, ये उसको हरा रहा है. एंड देन ही इज अगेन गेनिंग द होल्ड. वापस से क्या कर रहा है, हैदराबाद पे अपना दबदबा या अपना वर्चस्व या डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर ले रहा है. ओके, बट सी यहाँ पे आने के बाद भी वो डायरेक्टली मुगल अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर रहा है. बट व्हाट ही इज डूइंग, ही इज राइटिंग ए लेटर ऑफ अपोलॉजी. ओके, क्या कर रहा है वो, मुगल एम्पर के लिए एक लेटर ऑफ अपोलॉजी लिख रहा है. ओके, और बोल रहा है कि प्लीज ग्रांट मी द टाइटल ऑफ सूबेदार ऑफ हैदराबाद. समझ में आ रहा है वो क्या कर रहा है. ओके, वो अपोलॉजी लेटर लिख रहा है निजाम को और बोल रहा है कि प्लीज ग्रांट मी टाइटल ऑफ सूबेदार ऑफ डेक्कन. ओके, और सूबेदार हैदराबाद का टाइटल मुझे दे दो. समझ में आ रहा है. ओके, इसके बाद से जब वो खुद को प्रूव कर रहा है, तो अब जो भी मुगल एम्पर है वापिस से निजाम पे हाथ नहीं डालेगा. ओके, तो हो क्या रहा है देखो, फ्रॉम 1724 इटसेल्फ निजाम खुद को कंसोलिडेट कर रहा है हैदराबाद. ओके, तो इसीलिए वो क्या बोलेगा, फ्रॉम टुडे आई एम निजाम ऑफ हैदराबाद. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मतलब कब, 1724 में बोल रहा है कि आई एम द निजाम ऑफ हैदराबाद. और इसके आगे से मेरे जो भी सक्सीडर्स रहेंगे दे वुड बी कॉल्ड एज निजाम. इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, निजाम. समझ में आ रहा है सभी को आई गेस. ओके, इसके आगे से जो भी इसके रिलेटिव्स या फिर जो भी इसको सक्सीड करेंगे उनको निजाम बोला जाएगा. ओके, अभी इन्हीं सब निजाम्स के ऊपर एक बुक लिखी गई. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, आसफ जहान. ओके, तो एक बुक लिखी गई थी आसफ जहान. ओके, तो इसी वजह से इस डिनेस्टी को या फिर इस फैमिली को क्या बोला गया था, इस फैमिली या सेक्ट को बोला गया था आसफ जाही डिनेस्टी. इस डिनेस्टी को क्या बोला जाता है, आसफ जाही डिनेस्टी. तो जनरली देखोगे तो इस डिनेस्टी के 7 किंग्स रहे.
ये द जनरली 7 किंग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिनास्टी। ओके, और ये जो 7 किंग्स थे, इन्होंने कितने साल रूल किया है? ऑलमोस्ट 225 ईयर्स। ओके, ऑलमोस्ट 225 ईयर्स इस डिनेस्टी ने रूल किया। ओके, तो जो लास्ट किंग था इस डिनेस्टी का, उसका नाम था मीर ओस्मान अली। ओके, जो लास्ट किंग था इस पर्टिकुलर डिनेस्टी का, उसका नाम था मीर ओस्मान अली, जिसका रीन था फ्रॉम 1911 टू 1948। ओके, और इसी के पीरियड में जो हम आगे की स्टोरी स्टडी करने वाले, दैट इज मराठवाड़ा लिबरेशन मूवमेंट होती है। ठीक है, इसी के टाइम पीरियड में मराठवाड़ा लिबरेशन मूवमेंट खत्म, ये स्टार्ट होके सक्सीड होती है। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर chapter, that is in the context of subsidiary alliance, subsidiary agreement 1800। सॉरी गाइस, तो यू माइट हैव स्टडीड इन द मॉडर्न हिस्ट्री, सभी ने मॉडर्न हिस्ट्री में स्टडी किया होगा कि निजाम वाज द फर्स्ट पर्सन, ओके, ऑन 12th of October 1800, okay, he was supposed to be the first person to sign subsidiary alliance। अब subsidiary alliance होता क्या है? I'm not going to explain it over here, आपको पता ही होगा, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता ही होगा कि क्या करते हैं हम लोग। जो किंग होता है, इंडियन किंग होता है, ये खुद की आर्मी को डिसबैंड कर देता है, और ये क्या करता है, ब्रिटिश आर्मी को खुद की आर्मी बोल के रखता है। ठीक है? और उसके बदले में इसको क्या करता है, कुछ पेमेंट्स करता है। दिस इज कॉल्ड सब्सिडरी अलायंस। ओके, तो निजाम वाज सपोज टू बी द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस। ओके, तो इसने क्या किया था, जो सिकंदराबाद है, ओके, सिकंदराबाद में इसने क्या किया था, जो ब्रिटिश आर्मी है जिसको प्रोटेक्ट करने वाली है, ओके, उसको स्टेशन किया था। ओके, ब्रिटिश आर्मी वो स्टेशन एट सिकंदराबाद। और इसी के साथ साथ उसने, जो सब्सिडी अलायंस की कंडीशन होते हैं कि यू शुड नॉट एंगेज विद एनी अदर किंग्स, इट माइट बी इंडियन और इट माइट बी एनी फॉरेन, तो किसी से भी रिलेशंस नहीं रखनी। ओके, इस कंडीशन को भी उसने एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, वो क्या करने वाला था कि किसी भी इंडियन पावर से रिलेशंस नहीं रखेगा, पेमेंट करने के लिए। ओके, कंपनी को पेमेंट करने के लिए उसने क्या किया था, कुछ एरियाज थे निजाम के प्रोविंस के अंदर, विच वेर दोज कडप्पा, सॉरी, या कडप्पा। देन यू हैव कुरनूल। ओके, देन अनंतपुर, और उसके बाद था बेल्लारी। ओके, ये 4 एरियाज उसने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे कि यहाँ से रेवेन्यू लो, कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोविंसेस, और इसको क्या करना है, मेरी पेमेंट की तरफ से आपको रख लेना है। ओके, सो हियर ही हैज डन दिस पर्टिकुलर थिंग, निजाम ने ये पर्टिकुलर काम किया था। सो इससे हमको क्या पता चलता है कि निजाम का जो खुद का इंडिपेंडेंस था, व्हाट ही हैज डन, ही हैज लॉस्ट हिज इंडिपेंडेंस, उसने अपना पूरा इंडिपेंडेंस खो दिया। ओके, आई होप यू गाइस आर गेटिंग द स्टोरी अप टिल हियर, यहाँ तक की स्टोरी सबको पता चल रही है। अगर नहीं पता चल रही है तो फिर से रिवाइज करें, पीछे करके देखो, रिवाइंड करके देख लेना। ओके, थोड़ा स्लो करके देख लो, बिकॉज मुझे पता है थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके देखना। Okay. Now the next thing is about the regime of Mir Usman Ali. We are going to study about this particular person. Okay. Regime of Mir Usman Ali. Okay, मैंने बताया था कब से कब तक था, 1911 से 1948 तक, आफ्टर इंडिपेंडेंस, और यही टाइम पे 48 के दरमियान ही हमारा जो मूवमेंट है वो होता है। ओके, तो हमने इसे डिस्कस किया था, ही वाज सपोज टू बी द सेवेंथ एंड लास्ट निजाम। ओके, ही वाज सपोज टू बी द सेवेंथ एंड लास्ट निजाम, जो कि हैदराबाद के थ्रोन पे बैठने वाला था। ठीक है, कब सक्सीड किया था उसने, 29th of August 1911 को सक्सीड किया था। ओके, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ओके, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो निजाम के पास बहुत सारा पैसा था। ओके, तो व्हाट ही हैज डन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ही हैज कंट्रीब्यूटेड मैन मनी एंड मटेरियल टू टू द ब्रिटिश एम्पायर। ओके, ब्रिटिश को उसने क्या किया,
मैन दिया, मनी दिया और मटेरियल दिया। ओके, तो इस वजह से उसने जो भी हेल्प की थी, इससे ब्रिटिश एम्पायर बहुत खुश हुई। और जो किंग जॉर्ज फाइव था, किंग जॉर्ज फाइव, व्हाट ही डज, ही गेव हिम द टाइटल, व्हाट वाज द टाइटल गिवन बाय हिम, हिज एक्सीलेंट हाइनेस। व्हाट वाज द टाइटल गिवन, हिज एक्सीलेंट हाइनेस। ओके, ये टाइटल उसको मिला था किंग जॉर्ज फाइव से, हिज एक्सीलेंट हाइनेस। नाउ दिस पर्टिकुलर पर्सन, निजाम उस्मान अली, was supposed to be an ambitious person। इसके बहुत सारे एम्बिशन थे, इसको अपने एम्बिशन पूरा करना था। ओके, तो सबसे पहला जो ड्रीम इसका था, मेन एम्बिशन था, इसको क्या करना था, एक इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट बनाना। ओके, जो हैदराबाद है, जहाँ पे रूल कर रहा है, ओके, वहां पे उसको क्या करना था, इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट बनाना था। और इसी कॉन्टेक्स्ट में उसने क्या किया था, अपना जो कोर्ट था, का जो कोर्ट था, इस कोर्ट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसने क्या रखा था, पर्शियन। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट ऑफ निजाम, इट वाज सपोज टू बी पर्शियन। पहले अब तक पर्शियन हुआ करता था। तो इसने क्या किया, अपने एम को पूरा करने के लिए, इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए, इस पर्शियन लैंग्वेज को रिप्लेस करके वो क्या कर दिया, उर्दू। ओके, दिस पर्शियन लैंग्वेज वाज रिप्लेस्ड बाय उर्दू। इतना ही नहीं, तो जनरली क्या था इसके टाइम पीरियड में, जो मराठवाड़ा के यूनिवर्सिटीज थे वो बहुत ही कम हुआ करते थे। ओके, तो इसने क्या किया, 1917 में, ओके 1917 में ओस्मानिया यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की हैदराबाद में। ओके, इसके बाद औरंगाबाद में 1927 में, औरंगाबाद में, ओके, औरंगाबाद में उसने क्या किया, औरंगाबाद में एक इंटरमीडिएट कॉलेज, ओके, एक इंटरमीडिएट कॉलेज एस्टेब्लिश कर दिया। कहाँ पे, औरंगाबाद में। ओके, उस टाइम पे अगर देखोगे तो मराठवाड़ा में एक भी कॉलेज नहीं था जब उसने पहला कॉलेज औरंगाबाद में एस्टेब्लिश किया। ओके, ना जो हाई स्कूल्स थे, ओके, जो हाई स्कूल्स थे, इसमें मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या था, उर्दू। व्हाट वाज सपोज टू बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल, इट वाज उर्दू। ओके, अभी यहाँ पे क्या किया था उसने, जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, ओके, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, लाइब्रेरीज है, उस पे इसने बैन लगा दिया, ताकि ये लोग क्या करेंगे, जो भी रैशनल आइडियाज है, ओके, उनको पब्लिक में ना फैलने दिए। फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस उसने क्या किया था, जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और लाइब्रेरीज है, इन सबको बैन कर दिया था। जो भी अपर क्लास लोग होते थे, या फिर अपर क्लास फैमिली से, जो भी लोग अपर क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे, अपर क्लास, ये जो भी लोग हुआ करते थे, ओके, इनको क्या करता था, इनकी अपॉइंटमेंट एजुकेशन सेक्टर में किया करता था, एजुकेशन प्रोलिफरेट करने के लिए, एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए, या फिर जो भी हो, इसमें किया जाता था। ओके, उस टाइम का जो हैदराबाद था, ओके, उस टाइम के हैदराबाद के पॉपुलेशन में, या फिर बोल सकते पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर था, देयर वाज 11% मुस्लिम्स इन हैदराबाद। जो भी हैदराबाद का पॉपुलेशन था उसकी कंपेटिबिलिटी में 11% मुस्लिम थे। बट जब बात आती है गवर्नमेंट जॉब्स की, तो 75% सीट्स वेर फिल्ड बाय दिस पर्टिकुलर पीपल। ओके, मुस्लिम लोगों से 75% ऑफ जो सीट्स थे, वो क्या दिखाते थे कि वहां पे किसको अपॉइंट करता था, वो मुस्लिम्स को अपॉइंट करता था। तो दिस शोज, क्या वो इम्पार्शियल था, नहीं, ही वॉज वेरी पार्शियल। ये पार्शियलिटी बहुत ज्यादा पैमाने पे वो किया करता। ओके, so I hope you guys have got this particular session, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ रही है। okay? If you guys have any queries, you guys can just comment in the comment box। okay? इसके नेक्स्ट पार्ट में we are going to move towards social and cultural awareness। okay? और हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलो, थैंक यू गाइस, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। चलो।